So let's welcome our grade 2 students. दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे सारे आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना सजाना क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब में ट्विंकल स्टार्स है। चांद तो करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है। 3, 2, 1, boom! दिल में मार्स है, क्योंकि दिल में मार्स है, अपने दिल में मार्स है, दिल की प्यास है, दिल में मार्स है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे। Very nice performance, children. I just request all the dignitaries, if anyone from the dignitaries is sitting among the parents, please be seated on the VIP reserved seats. Now let's go to the next decade. Good morning everyone. The world needs huge positive energy to fight against the negative forces. Go to the center of your inner being and generate that positive energy for the welfare of humanity. Good morning everyone. I am Smita Kamble, a class teacher of grade 1. Yes audience, I am talking about COVID-19. How can we forget COVID-19 in this 75 years of journey? COVID-19 is a term the world has been altering for almost 2 years now. The COVID disease is an infection disease caused by
COVID-2 virus. Since the birth of pandemic, the world has shifted to the new normal, wearing masks as the new accessories and sanitizer are used like sunscreen. On the evening of 24th March 2020, the Government of India ordered a nationwide lockdown for 21 days, limiting movement of entire 1.38 billion 138 crore population of India. We shall not forget being an Indian. We have shown our unity and strength by support our government to observe a very first 14-hour volunteer public curfew on 22nd March 2020. On 14 April, Prime Minister Narendra Modi extended a nationwide lockdown until 3rd May 2020. On written recommendation of Governor of all the states, it is really appreciable that almost everyone had cooperated with the government by staying at home. As we enter a lockdown 3.0, the country was divided into red, orange and green zones. Some relaxation have been made to those areas which fall under orange and green zone, but there was no relaxation given to the areas to those who were under a red and contaminated zone. The shock of losing someone close to you, your family, friend, relatives, with the pain of not being able to participate in their last rites often put individuals in a situation where their mental health is affected severely. The COVID-19 pandemic has caused mental health crisis. Across the globe, according to the World Health Organization, more than 4 million people have lost their life across to the globe due to COVID-19, leaving behind families who were even unable to say a proper goodbye to their loved ones due to the social distancing norms. I hope, dear parents, you are aware about devotion and sacrifice our doctors and police department, and we shall not forget our children busy in online classes throughout the pandemic. To remember a bitter and sweet memories of COVID-19, a student of Nachal International School will present a mind dance. Thank you. म्हणजेच तुमच्या भविष्य काळातून लिहित आहे. आम्ही आता जिथे आहोत तिथे काही दिवसांनी तुम्ही असणार आहात. कोरोनाची साथ ही सगळीकडे एका विशिष्ट पद्धतीने पसरते आहे. त्यामुळे तुमचा प्रवासही आमच्यासारखाच असणार आहे. कोरोनाच्या विळख्यात वेळेच्या बाबतीत आम्ही तुमच्या थोडं पुढे आहोत. जसं वुहान होतं आमच्या काही आठवडे पुढे, आम्ही तसंच वागलो जसं आता तुम्ही वागताय. तुमच्याकडेही परिस्थितीचं गांभीर्य कळलेल्या आणि न कळलेल्या लोकांमध्ये वाद आहेत, जसे आमच्याकडेही होते. एकीकडे सरकारने दिलेल्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणारे लोक आहेत आणि दुसरीकडे साधा फ्लू तर आहे, त्यात एवढी काय काळजी करायचं कारण असे म्हणणारेही आहेत. पण लवकरच हेही वाद मागे पडतील.
विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। जय 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 हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, हम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। Actually, we Indians are really very strong and we can face any kind of difficulties एक दूसरे का साथ देके. So now let's travel next. I request Usha ma'am. Sorry, I request Vidya ma'am to take you to the next journey. A warm good morning to all. I am Mrs. Vidya Kasar from Nurture International School. अजीब खेल है कुदरत के मौसमों का, गर्मी के सूखे में 2 बूंद पानी के लिए तरस गए और बरसात की बाढ़ में 2 गज सूखी जमीन को। तो आपको पता ही चला होगा कि हमारी इंडिया ने जैसे जैसे कोविड और बहुत सारी जो आपत्तियां हैं उनमें से उभर कर आया है, उसी तरह हमने बहुत सारी आपातकालीन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने उसका डट के सामना किया है। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक घटना है जो संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाती है या मानव जीवन को नुकसान पहुंचाती है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के अन्य स्थानों में प्राकृतिक आपदाओं का दुखद इतिहास रहा है। अभी इसी साल हमारे देश को आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं। जब हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं तब हम हमारा बीता हुआ पूरा साल याद करते हैं। तो चलो हम याद करते हैं हमारे इन 75 साल में क्या क्या हुआ। भारत में राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में अकालीय आपदा बहुत समस्याएं लेके आई। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ बाढ़ थी। दोनों परिस्थितियों में भारत के लोगों को अपने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
सूखे को अगर कोई जिम्मेदार है तो हम ही हैं। क्यों हम जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम लोग पानी बचाते नहीं हैं। कब पानी बरसेगा, सूखा कब होगा, जन जन करता है ये पुकार, बरसात की कहता है पुकार। पानी की एक एक बूंद की अब हर कोई समझता है कीमत, अब ना पानी व्यर्थ बहाएंगे, एक एक बूंद को बचाएंगे। पहले सबसे पहला वाला सूखा जो पड़ा था वो सातारा जिले में था, जो बंगाल के अनुमान के मुताबिक लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 2015 में अकाल ने महाराष्ट्र के 90 लाख किसानों को प्रभावित किया। सन 1972 में भारत में एक बारिश ने पहले ही भारत की चावल, गन्ना, मूंगफली और चीनी की फसलों को बर्बाद कर दिया था। ना लोगों को पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए कुछ था। हमारे अच्छे गेहूं और चावल हम बाकी के बाहर के देश में बेचते थे, लेकिन जब ये अकाल हुआ तो वहाँ के कीड़े मकोड़े वाले गेहूं और चावल हमें यहाँ पे खाने के लिए मिलते थे। 2014 में जब ये मानसून बहुत बरसा, तब सब फसलों का नुकसान हुआ और बाढ़ की परिस्थिति निर्माण हुई। कभी बाढ़ की स्थिति हो या कभी सूखा हो, भारत हमेशा ही इसके ऊपर मात करके आगे बढ़ा है। स्वतंत्र भारत में जब इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ, तब इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारे पंतप्रधान थी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पानी को रोकने के लिए बांध नामक कृत्रिम अवरोध बनाया गया। इन बांधों ने द्वारा जरूरत के समय पानी का उपयोग करके सिंचाई करने में सुविधा मिलती है। मध्य प्रदेश जिले में गांधी सागर नामक बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पानी संचयन था। दूसरा बड़ा जलाशय हीराकुंड जलाशय, इसका उपयोग बिजली उत्पादन में हुआ। तीसरा बड़ा बांध था इंदिरा सागर बांध, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर बनाया गया था। जब लोगों ने इस अकाल परिस्थितियों से पलायन किया, तब इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत की। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, या भारत सरकार द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण के लिए हरित क्रांति लागू की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि हरित क्रांति से खेती की पैदावार में सामान्य किस्म से ज्यादा पैदावार हुई। देश के खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की योजना की शुरुआत की गई। भारत में दूध की कमी को दूर किया जाए, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दूध की आपूर्ति को 3 गुना करने, जिससे भारत सफल रहा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भोजन और कृषि की कई क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता का श्रेय इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, यह शास्त्री जी का नारा किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों को प्रेरित किया जाता है। जब जॉनसन के साथ अपनी कड़ी वार्ता के दौरान इंदिरा गांधी जी ने गुस्से में उन्हें कहा था कि अभी भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। इसलिए उन्होंने, आज तक हमने किसी के भी सामने झुका नहीं है, किसी की भी सामने भीख नहीं मांगी है, ना अनाज के लिए कभी किसी सामने हाथ फैलाया है। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ जल के लिए मची हुई और आत्मनिर्भर भारत की सुंदर यात्रा की तरफ। तो मैं अभी बुलाना चाहती हूँ हमारे 4ठी कक्षा के बच्चों को अपनी अगली भारत की सफलता में। I once again request all the dignitaries, those are sitting among the parents, please come and sit on the VIP reserved seats. आता तेवढं जे बोललं आता त्याच्यासाठी कर्माचे फळ आहेत ना तुम्हाला
के इस प्यास का तू बल दे। जल दे जल दे जल दे जल दे जल मेरा दे जल ही जल दे जल दे जल दे जल दे जल दे जल मेरा दे जल ही मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। time to rethink. That's water waste, there's a drought. Time to rethink. We're in such a drought that we're starting to sink. But it's El Nino time. It's here to save the day. This weather pattern brings lots of rain to help stop this drought. Yeah, it's El Nino time, but it won't save the day. 'Cause due to climate change, it's not enough to escape this drought. And this drought. There is one announcement. If Abhiraj Singhewar and Arya Bichewar, they have come, please go back to the backstage. I request them. Abhiraj Singhewar and Arya Bichewar, please go on the backstage. नमस्ते, मैं उषा भोसले नर्चर इंटरनेशनल स्कूल की अध्यापिका। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथि स्कूल की प्रधानाचार्य हर्षाली मैम, मेरे प्रिय छात्र और छात्राएं और सभी दर्शक, आप सबको मेरा नमस्कार। इस वर्ष हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हर घर हमने तिरंगा लहराया। करीब 150 साल लड़ाई लड़ने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इस संग्राम में कई देशवासी अपनी आज़ादी के लिए लड़े, लाठियाँ खाई, तकलीफ़ें झेली, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दिया। यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। कई जवानों ने सीने पर गोलियां खाई, कईयों ने खुशी खुशी देश के नाम अपने जीवन कई जवान हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। आज मैं आपको ऐसे ही शहीद जवानों की कहानी सुना रही हूँ। शहीद इस शब्द का अर्थ जो व्यक्ति देश की रक्षा के लिए लड़ता है और लड़ते हुए जिसकी मृत्यु होती है, उस व्यक्ति को हम शहीद कहते हैं। यह व्यक्ति वायुसेना, स्थल सेना, जल सेना, BSF, होमगार्ड, पुलिस आदि के सिपाही होते हैं। शहीद अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं और अपने आप को देश के लिए न्योछावर करने में कभी पीछे नहीं हटते। धर्म के लिए, देश के लिए मर जाने वाले व्यक्ति को शहीद या वीर गति को प्राप्त कहा जाता है।
आज तक हमारे देश के लिए कई वीरों ने अपनी जान दी है, उन्हें मैं शत शत नमन करती हूँ। हमारे देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाले पहले शहीद जवान हैं मंगल पांडे। यह स्वतंत्रता संग्राम के पहले हीरो है। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। यहाँ गाय और सुअर की चर्बी वाली राइफल की कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के 2 अफसरों को मार डाला। इस कारण 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने केवल 30 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी। दूसरे महान शहीद वीर जवान हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन तीनों वीरों ने आज़ादी के लिए लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेज सरकार ने इन तीनों वीरों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। तब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की उम्र केवल 23-24 साल की थी। हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले युवा क्रांतिकारियों में इनका नाम आता है। चंद्रशेखर आज़ाद इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक है। इन्होंने भी केवल 24 साल की उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन महान क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को अंग्रेज सरकार ने फांसी दी थी और इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह एक सैन्य संघर्ष था। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। आइए जानते हैं कारगिल युद्ध की और हमारे जवानों की साहस की कहानी। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए 500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वही युद्ध के दौरान हमारे शूरवीरों ने 3000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक और आतंकियों को ढेर कर दिया। इस युद्ध में हमारी जीत हुई, इसीलिए 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। अब जानते हैं पुलवामा के वीर जवानों की कहानी। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिससे पूरा देश दहल उठा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस आत्मघाती हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के सशस्त्र सेनाओं ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उन जवानों की शहादत की याद आज भी बरकरार है। 26 नवंबर 2008 की रात एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। आतंकवादियों ने मुंबई के 2 5 सितारा होटल, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। मुंबई का ताज होटल, ओबराय होटल और नरीमन हाउस को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया। ताज होटल में लगभग 6 विस्फोट हुए। मुंबई में अलग अलग जगह पर किए गए इस आतंकी हमले में कई लोग मारे गए। इस हमले में सेवानिवृत्त फौजी तुकाराम ओबले और मुंबई पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर हेमंत करकरे लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान उन्होंने न्यौछावर की। तुकाराम ओबले और हेमंत करकरे को मरणोपरांत असाधारण बहादुरी और वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इस हमले में आतंकियों को मार गिराने में मरीन कमांडो ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसमें NSG के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए। इन साहसी वीर योद्धाओं को हम
कभी नहीं भूल सकते। 18 सितंबर 2016 को सुबह अचानक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहब्बत के 4 आतंकियों ने उरी में सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। यह चारों आतंकी पाकिस्तानी सेना की मदद से भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इन चारों आतंकियों ने सेना के मुख्यालय के समीप पहुंचते ही गोलियों की बौछार शुरू कर दी और देखते ही देखते कैंप में आग लग गई। भारतीय सेना के जवानों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ 6 घंटों से अधिक समय तक चली। इस कार्रवाई में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए, लेकिन हमारे जवानों ने चारों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा कदम उठाया कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकी कैंपों का खात्मा कर सकता है। भारत ने 28-29 सितंबर की रात को भारतीय सेना के विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें तबाह कर दिया। आज भी हमारे देश पर जब जब दुश्मन हमला करता है तब तब हमारे देश के वीर जवान अपनी जान पर खेलकर हम सब देशवासियों की रक्षा करते हैं। हमारे देश की तीनों सेनाएं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, साथ साथ पुलिस हमारे देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात है। समय आने पर यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपनी जान भी दे देते हैं। हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले और शहीद होने वाले ऐसे महान वीर साहसी जवानों को मैं शत शत नमन करती हूँ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। इन सभी शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय हिंद। नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकियों ने हमला बोला। खून खराबा तबाही इनकी है पहचान। फितरत से घिन भी है हैरान। कौन है ये हैवान, कौन है ये शैतान। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी
you all are enjoying this electrifying performances, but picture abhi baki hai. Now, as we are having our guests, those have taken their precious time for our event, so we cannot go ahead without felicitating them. So I request our principal ma'am, Mrs. Harshali Kharat, to felicitate all the dignitaries and guests, and I also request all the dignitaries, please be on stage. Mr. Shashikant Kharat, founder, director and principal of Nurture International School, Mrs. Sudarshana Trigunai, president and director of Nurture International School, Mrs. Trupti Mishra, trustee of Nurture International School, Mrs. Pooja Maurya, trustee of Nurture International School, Mr. Avinash Salode, trustee of Nurture International School, Mrs. Sonali Avinash Salode, trustee of Nurture International School, Mr. Vishal Salode, trustee of Nurture International School, Mrs. Pradnya Vishal Salode, trustee of Nurture International School, Mrs. Veena Natraj and Mr. Natraj Mudliyad, Director of Bachpan School Saloli, Mr. Indrajit Bhosle Sir, Director of Divya Classes and Computer Institute, Major S.D. Singh, Director of Pune Public School, Bhosri, Mrs. Sheetal Ma'am, Director of Sharda Preschool, Mr. and Mrs. Marker of Naneshwari Nyan Mandir Preschool, Mrs. Ranu Kanthed, Director of Bachpan School, Lohegaon, Mr. and Mrs. Labde, Sunrise English Medium School, Mrs. Renuka Mote, Sai Wonder English Medium School, Mrs. Urmila Zadav, all the dignitaries, please be on the stage. Bhosle ma'am. Bhosle sir has not come. Sir, please be on the stage.